So in today's lecture, we are going to deal with the critique of positivism. So the critique of positivism was propounded by non-positivistic methodologies. So जो non-positivistic methodologies थी, they came after positivistic school of thought, right? तो हम इसमें वेरियस थेरीज पढ़ेंगे नॉन पॉजिटिविस्टिक मैथडोलॉजीज में. इसके अलावा भी हम वेरियस क्रिटिसिज्म देखेंगे पॉजिटिविज्म के. सो ऑल इन ऑल वी विल ट्राई टू स्टडी द critique of positivism from 14 to 15 dimensions, right? So I would advise you to be attentive and to note down those 14 to 15 points, because those 14 to 15 critiques of positivism will form a sub part of non-positivistic methodologies and other criticisms, right? So now we will start with non-positivistic methodologies. See, जो critique of positivism है, सी हमने देखा था कि व्हाट इज पॉजिटिविज्म. पॉजिटिविज्म इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, द साइंटिफिक स्पिरिट, द वेरियस फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मेथड लाइक building macro theories, building universal theories, arguing that human behavior is actually static and it conforms to the demands of cultural values, norms and the social structure, right? We have studied about that. We have studied about observation, empiricism and experimentation, the method to be used in scientific study of society, right? We have also studied about value neutrality and objectivity and other various features like multivariate analysis, cause and effect relationship. So these non-positivistic methodologies will criticize the use of these features that were adopted by positivism, right? That were borrowed by positivism from the scientific method that was used in the field of natural sciences. So these non-positivistic methodologies will be criticizing these various features adopted by positivists, right? So the critique of positivism will come from non-positivistic methodologies. As the very name suggests, these are non-positivistic theories or non-positivistic methodologies to be used by the sociologist while conducting social research, right? So non-positivistic methodologies or theories. So the common features of all these non-positivistic methodologies or theories is that they rejected and criticized the use of scientific method in sociological studies, right? तो हम पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजीज क्या क्या है, हम क्या पढ़ेंगे और किन किन थिंकर्स ने इन नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजीज को दे वर पुट फॉरवर्ड बाय दीज वेरियस थिंकर्स. सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ थ्योरीज जो हम पढ़ेंगे विल बी इंटरप्रेटिव थ्योरीज. हम ये भी देखेंगे इनको इंटरप्रेटिव थ्योरीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि दीज थ्योरीज इन्वॉल्व द यूज ऑफ द मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट इज अ क्वालिटेटिव मेथड, नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है. सो the founding fathers of these interpretive theories are the neo-Kantians, right? ठीक है. तो जो neo-Kantians हैं, they were inspired or influenced by इमैनुअल कैंट. तो जो इमैनुअल कांट थे,
ही वॉज अ फिलोसोफर, ठीक है, राइट, ही वॉज अ फिलोसोफर। तो फाउंडेशंस ऑफ क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म क्या है, ये जो फाउंडेशंस हैं दे वर लेड डाउन बाय इमैनुअल कांट, राइट। और ये जो कांट के आइडियाज को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं नियो कांटियंस, ठीक है। सो नियो कांटियंस दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इमैनुअल कांट, द फिलोसफी ऑफ इमैनुअल कांट। हम इमैनुअल कांट की फिलोसफी भी पढ़ेंगे, बिकॉज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय नियो कांटियंस, राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ कांट, ठीक है। तो हम सबसे पहले इमैनुअल कांट की फिलोसफी पढ़ेंगे, देन वी विल गो टू नियो कांटियंस। और नियो कांटियंस फर्दर इन्फ्लुएंस्ड वेबर, ठीक है। तो हम जस्ट वेबर के आइडियाज को स्टडी करने के लिए, वी हैव टू एटलीस्ट हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ द फिलोसफी ऑफ इमैनुअल कांट, ठीक है। सी मैंने यहां पे एक एस्टेरिस्क साइन यूज किया है, यू विल गेट टू नो व्हाई आई एम यूजिंग द एस्टेरिस्क साइन सम टाइम लेटर, राइट। नाउ हु वर दीज नियो कांटियंस, सी इनका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक मेथड के बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड प्रीवियसली इन प्रीवियस ईयर्स मेंस पेपर्स आल्सो, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू रीड द फिलोसफी ऑफ कांट एंड नियो कांटियंस। तो इनका नाम क्या है, हु वर द नियो कांटियंस, ठीक है। पूरा नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, विल्हेम डिल्थे, ठीक है। एक तो ये थे नियो कांटियन, राइट, डिल्थे भी याद रखोगे तब भी चलेगा, राइट। दूसरे थे हाइनरिक रिकल्ट, ठीक है, आप रिकल्ट भी याद रखोगे तो वो भी चलेगा। एंड द थर्ड वाज विंडलबैंड, ठीक है। फर्दर जो थियोरीज डेवलप होंगी इंटरप्रेटिव थ्योरीज में, उनको हम देखेंगे, दे आर सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, ठीक है, फिनोमिनोलॉजी, right, and the third one is ethnomethodology, ethnomethodology। सी ये जो तीन थियरीज हम पढ़ेंगे, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, फिनोमिनोलॉजी और इथनोमेथोडोलॉजी, वी विल बी स्टडिंग दिस थियरीज इन ब्रीफ ओनली, राइट। वी विल ट्राई टू study these theories, we will try to understand the basic concepts, because without understanding the basic concepts of these theories you won't be able to understand how they criticized the positivistic theories or positivistic ideas that were put forward by Comte, Spencer, Durkheim, Karl Marx, right. We talked about Parsons also, so we have to at least have some basic understanding of these theories. तो ये जो theories हैं, we will be studying these theories in detail when we'll be स्टडिंग अबाउट द थिंकर्स पोर्शन, ठीक है। सिलेबस में आपको दिया गया स्पेशली सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, दिस थियरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय जीएच मीड। तो जब हम जीएच मीड के बारे में पढ़ेंगे तो वी हैव टू रीड अबाउट मल्टीपल थिंकर्स, राइट। तो हम तीनों थियरीज को डिटेल में जब पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी स्टडिंग अबाउट जीएच मीड, राइट। बट यहाँ पे हम खाली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सी हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे क्रिटिसिज्म दिया जाएगा। तो एटलीस्ट I am giving you some name of sociologist which you could use in the your answer while giving forward the critique of positivism, ठीक है। तो जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, बाय जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जीएच मीड, ठीक है। इन्होंने अपने आइडियाज दिए थे जीएच मीड ने, ठीक है। लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो नोमेनक्लेचर है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, ये किसने दिया था, ये दिया था बाय द स्टूडेंट
ऑफ G.H. मीड, राइट। इनके स्टूडेंट कौन होंगे? हर्बर्ट ब्लूमर, ठीक है। इन्होंने ही सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के टर्म को कॉइन किया था, ठीक है। एंड वन अनदर इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट इन द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट थियरीज इज अर्विंग गॉफमैन। सी अर्विंग गॉफमैन का हम जब पढ़ेंगे, जब हम थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। अर्विंग गॉफमैन ने वेरियस थियरीज और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स दिए थे जो आप यूज कर सकते हो। कंसेप्ट्स लाइक आपका सिविक इनअटेंशन, ड्रामेटर्जी का कंसेप्ट दिया था जिसमें इन्होंने बोला था दैट द एंटायर वर्ल्ड इज अ थिएट्रिकल स्टेज, राइट। मैन आर परफॉर्मिंग देयर रोल्स जस्ट लाइक एक्टर्स आर परफॉर्मिंग देयर रोल्स इन अ थिएटर. In a similar manner, man is also portraying the roles that were allocated to them by the cultural values and norms. तो ये फ्रंट रीजन्स और बैक रीजन्स के बारे में बात करेंगे. ही विल ऑल्सो टॉक अबाउट स्टिग्मा. तो इसको हम थिंकर्स पोर्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक. लेकिन आप इन तीनों नेम्स को यूज कर सकते हो क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म. फिनोमिनोलॉजी की फाउंडेशंस कहाँ रखी गई थी, ठीक है. जो फिनोमिनोलॉजी जो थ्योरी है उसकी फाउंडेशंस क्या है, फिलॉसफी में रखी गई थी, इन द फील्ड ऑफ फिलॉसफी. हम जितने भी सोशोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, आपको एक पर्सपेक्टिव ये पता होना चाहिए कि दीज सोशोलॉजिस्ट दे स्टडी नॉट इन आइसोलेशन टू अदर्स, राइट. तो ये जो सोशोलॉजिस्ट हैं दे आर ऑल्सो वेल वर्स्ड विद द नॉलेज ऑफ वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज, फिलोसफी, साइकोलॉजी. तो फिलोसफी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको देखने का मिलेगा. जब आप मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे तो हेगल के बारे में जरूर पढ़ेंगे, राइट. इवन इन दिस थियरी जब हम फिनोमिनोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट, तो हम हेगल के बारे में पढ़ेंगे और हेगल और कैंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे. तो ये सारी की जो काफी फाउंडेशंस है ना फिलोसफिकल फील्ड्स में रखी गई है. निश्जे फ्रेडरिक नीचे इज ऑल्सो अ फिलोसोफर. सो द फाउंडेशंस ऑफ फिनोमिनोलॉजी वर लेड इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी, ठीक है. तो एडमंड हसरल एक फिलोसोफर थे. ही वॉज इनिशियली अ मैथमेटिशियन, देन ही टर्न्ड अ फिलोसोफर एंड ही गेव एंड प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ फिनोमिनोलॉजी. लेकिन इसको सोशियोलॉजी में किसने अडॉप्ट किया, सोशियोलॉजी में जिसने इसको अडॉप्ट किया फिनोमिनोलॉजी वाली थियरी को, उनका नाम है एल्फ्रेड शूड्स. तो आप जब क्रिटिसिज्म दोगे पॉजिटिविज्म का तो यू शुड मेंशन द नेम ऑफ एल्फ्रेड शूड्स, राइट. तो जब फिनोमिनोलॉजी को अडॉप्ट किया गया इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी तो इसको बोला गया फिनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजी, राइट. एल्फ्रेड शूड्स के अलावा दो इंपॉर्टेंट जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, दे आर पीटर बर्जर एंड थॉमस लकमैन. इनको आप ना यूज कर सकते हो, इन सारे इन सोशियोलॉजिस्ट के नेम्स को यूज कर सकते हो, राइट, इन योर आंसर्स. तो ये दोनों एसोसिएट्स थे एंड दे रोट अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक which goes by the name. This book was written in 1960s and this book became a worldwide hit, right. People who wanted to engaged in various kind of revolutions to overthrow various kind of systems, they were specially inspired by these two sociologists, Peter Berger and Thomas Luckman, and their book The Social Construction of Reality, ठीक है. तो आप ये वाला जो टर्म है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये हम आगे पढ़ेंगे और ये काफी बार देखने को मिलेगा नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजीज में, स्पेशली सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमिनोलॉजी और इथनो मेथोडोलॉजी में. तो दे रोट अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, राइट. देन इथनो methodology was propounded by
हैरल्ड गारफिंकल। कुछ लोग बोलते हैं कि इथनो मेथोडोलॉजी इज नॉट ए थियरी, रादर इट इज ए मेथोडोलॉजी, राइट? इट इज ए काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी विच इज propounded by Harold Garfinkel to be used in sociological studies, right? So this ethnomethodology is influenced by phenomenology, right? So it is also called as the offshoot of phenomenology. See, ये तीनों theories आपस में overlap करेंगी, इनके ideas overlap करेंगे, so we will be collectively studying them, right? We won't be differentiating between these theories in these 2 to 3 lectures, right? जब हम थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बीच के इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। सी, और कौन कौन सी नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी और थ्योरीज थी जिन्होंने क्रिटिक दिया पॉजिटिविज्म का? अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इज क्रिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो क्रिटिकल थियरी ये स्पेशली कहां डेवलप हुई थी? जर्मनी में। सी, कंटेक्स्ट देखिएगा, और मैंने आपको पहले बोला था कि जिस सोशल पॉलिटिकल मिल्यू और कंटेक्स्ट में जो सोशोलॉजिस्ट है या कोई इंडिविजुअल है, उसके आइडियाज उसी कंटेक्स्ट से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, राइट? तो वो जो आइडियाज प्रोपाउंड करता है, दे आर नॉट प्रोपाउंडेड इन रैंडम मैनर और इन आइसोलेटेड मैनर, दे आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड और शेप्ड बाय द सोशल पॉलिटिकल मिल्यू और दोज टाइम्स। ठीक है, तो जर्मनी फ्रैंकफर्ट करके एक जगह थी, तो इसको फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट भी बोला जाता है। राइट, तो ये जो थियरी थी ये स्पेशली लेट 1920s और अर्ली 1930s में डेवलप हुई थी। ये जो टाइम था, इस दौरान जर्मनी में हमने देखा कि नाजिज्म का राइज हुआ था और इटली में फासिज्म। तो जो एंटायर यूरोप था, इट वाज स्वीप्ड बाय द फोर्सेस ऑफ टोटलिटेरियन फोर्सेस ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म, जहां पे जो हिटलर है और मुसोलिनी का राइज हुआ था। ठीक है, तो दिस थ्योरी क्रिटिसाइज्ड पॉजिटिविज्म वेरी वेरी सिवियरली, दे क्रिटिसाइज पॉजिटिविज्म। और इन थियरीज ने बोला कि जो कॉम्ट ने पॉजिटिविस्टिक फिलॉसफी दी है, इट इंस्पायर्ड द नाजी एंड फासिस्ट आइडियाज, राइट? बिकॉज साइंस इज ऑल्सो, दे सेड, इज टोटलिटेरियन इन नेचर। इट क्लेम्स कि हम ही जानते कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, ठीक है, मोस्ट फंडामेंटल ट्रुथ क्या है, एंड साइंस रिजेक्ट ऑल अदर काइंड्स ऑफ ट्रुथ। तो ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो कॉम्टियन आइडियाज थे पॉजिटिविज्म के, दे इंस्पायर्ड द नाजी एंड फासिस्ट रिजीम्स, सो दे सीवियरली क्रिटिसाइज्ड पॉजिटिविज्म। ठीक है, इसलिए इसको एंटी पॉजिटिविज्म भी बोला जाता है। ठीक है, ये जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप ये देख लीजिएगा कि पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो यहां पे जो सोशोलॉजिस्ट थे इस टाइम के, दो इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने बुक लिखी द डायलेक्टिक्स ऑफ इनलाइटनमेंट, राइट? दे क्रिटिसाइज्ड इनलाइटनमेंट। तो ये जो दो आपके सोशोलॉजिस्ट हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है थियोडोर अडोर्नो, मैक्स होरखाइमर। ठीक है, फर्दर इन थियरीज पे, सी दीज थियरीज, क्रिटिकल थियरीज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्क्सिस्ट आइडियाज। ठीक है, दीज थियरीज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट आइडियाज। तो इनको क्या है, मार्क्सिस्ट थियरीज भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कई कुछ ना कुछ चेंजेस लाने के बारे में बात की, कुछ चेंजेस एडवोकेट करने की। दे डिफर्ड फ्रॉम द क्लास बेस्ड अप्रोच ऑफ मार्क्स, राइट? तो इसके अलावा और बाकी जो सोशोलॉजिस्ट आएंगे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट आएंगे, दे विल बी हुर्गन हैबरमास, ठीक है, एंड हर्बर्ट मार्क्यूस। ये बाद में आएंगे आपका थियोडोर अडोर्नो और मैक्स होरखाइमर के बाद। इसका तो हमने कॉन्टेक्स्ट देख लिया है।
दे केम लेटर, ये काफी सारी बातें करते हैं, दे टॉक अबाउट कल्चर इंडस्ट्री, दे टॉक अबाउट द क्रिटिक ऑफ मीडिया, राइट। तो ये सारी थियरीज इन्होंने प्रोपाउंड की थी, ठीक है। इसके अलावा एक और थियरी हम देखेंगे, द स्ट्रक्चरेशन थियरी, स्ट्रक्चरेशन थियरी, ठीक है। ये किसने दी थी? दिस थियरी वॉज गिवन बाय एंथनी गिडन्स, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जो रेफर की जाती है फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल एज वेल, ठीक है। ही इज द सेम गिडन्स, एंथनी गिडन्स, ही गेव द स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। मैं यहां पे भी एक एस्टेरिस्क लगा रहा हूं, तो हमने एक वेबर पे एस्टेरिस्क लगाया और एक स्ट्रक्चरेशन थ्योरी गिडन्स पे एस्टेरिस्क लगाया, ठीक है। एंड द वन लास्ट थ्योरी, नॉन पॉजिटिविस्टिक थ्योरी, अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इज पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट also, so our next 2-3 lectures will be studying about all these theories, right, and plus some other criticisms as well. These criticism did not came from non positivistic methodology, हम इन criticisms को भी देखेंगे, some other criticisms as well. तो around 14-15 dimensions आपको यह पॉइंट मिलेंगे for the critique of positivism. पोस्ट मॉडर्निस्ट थियरीज कौन कौन सी किसने दी थी? इनिशियली पोस्ट मॉडर्निज्म प्रोपाउंड किया था बाय फेमस फिलोसोफर, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ठीक है। वो मर्ज करता है, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये जो स्कॉलर्स होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर डोमेन्स में स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, राइट। वो कंप्रीहेंसिवली नॉलेज के साथ डील करते हैं, बिकॉज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी यू हैव टू ऑल्सो रीड अबाउट पॉलिटिक्स, यू हैव टू ऑल्सो रीड अबाउट पॉलिटिकल साइंस, यू हैव टू ऑल्सो रीड अबाउट फिलोसफी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओवरलैप होता है इन वेरियस ब्रांचेस के बीच में, इसलिए एक टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट कौन कौन थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी? सी इनिशियली जॉन फ्रैंकाइस लियोटार्ड, इन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जहां से पोस्ट मॉडर्निज्म की शुरुआत हुई थी। ये बुक का नाम है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ठीक है। सी मैं अगेन बोल रहा हूं कि क्रिटिकल थियरी और पोस्ट मॉडर्निज्म को हम डिटेल में कब पढ़ेंगे? व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम, व्हेन विल बी स्टडिंग अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। वो चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम इन दोनों थियरीज को डिटेल में डील करेंगे, राइट। इसके अलावा और कौन कौन से इसमें अनदर इंपॉर्टेंट थिंकर्स आएंगे? एक आएंगे मिशेल फुको, मिशेल फुको, ठीक है। इन्होंने एक बहुत फेमस टर्म्स दी थी जो आप कहीं ना कहीं यूज करते होगे, नॉलेज। सी ऑल दिस पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट पावर, इसलिए हम इनको पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ेंगे। इन्होंने एक कोट समझ लो, कुछ भी समझ लो आप, इंपॉर्टेंट कोट दिया था, दैट इज नॉलेज इज पावर, ठीक है। ही टॉक्स अबाउट डिस्कोर्सेज, वी विल सी अबाउट डिस्कोर्सेज एज वेल इन पॉलिटिकल सिस्टम चैप्टर। और एक और इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, दैट इज जैकस डरीडा, DERRIDA। इन्होंने भी वेरियस थ्योरीज दी थी, लाइक थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, राइट। तो ये एक आपका एक स्ट्रक्चर बन गया, और इन मल्टीपल जो डायमेंशंस हैं, इनसे मल्टीपल डायमेंशन से हम क्या है क्रिटिक देंगे पॉजिटिविज्म का, प्लस दीज अदर क्रिटिसिज्म्स, राइट। नाउ मैंने जो यूज किया है, एस्ट्रिक्स यूज किया है वेबर में और स्ट्रक्चरेशन थ्योरी ऑफ गिडन्स में, ठीक है। तो ये वेबर प्लस स्ट्रक्चरेशन थ्योरी ऑफ गिडन्स, वेबर प्लस गिडन्स, ठीक है।
नाउ दे विल, ये जो दो थिंकर्स हैं, दे विल ट्राई टू मिटिगेट the gap between or they will try to reconcile or they will form a bridge or they will balance between positivistic and non-positivistic methodologies, ठीक है. See, all positivistic theories are macro theories, ठीक है. These are macro theories. मैक्रो थियरीज कैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डील किया था, बट स्टिल वी विल अंडरस्टैंड द गैप बिटवीन मैक्रो सोशियोलॉजी एंड माइक्रो सोशियोलॉजी, ठीक है. हम इसमें पढ़ेंगे कि ये जो तीनों थियरीज हैं, दीज थ्री थियरीज दे आर माइक्रो सोशियोलॉजी, ठीक है. तो मैक्रो सोशियोलॉजी और मैक्रो थियरीज they talk about structure, social structure, right. और जो नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजीज हैं उसमें क्या है, सी उसमें माइक्रो थियरी आएंगी. एक तो माइक्रो थियरी मतलब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमिनोलॉजी और इथनो मेथोडोलॉजी, प्लस नॉन पॉजिटिविस्टिक्स में मैक्रो थियरीज भी आएंगी. मैक्रो थियरी कौन कौन सी है? मैक्रो थियरी ऑफ क्रिटिकल थ्योरी इज अ मैक्रो थियरी. हम मैक्रो माइक्रो के बीच में डिफरेंस देखेंगे. और आपका जो पोस्ट मॉडर्निज्म इज मैक्रो थियरीज टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट, ठीक है. तो माइक्रो थियरीज जो होंगी दे विल टॉक अबाउट एक्शन, ठीक है. तो ये जो पॉजिटिविज्म है, तो ऑल पॉजिटिविस्टिक थियरीज आर मैक्रो थियरीज, बट नॉट ऑल मैक्रो थियरीज आर पॉजिटिविस्टिक थियरीज, राइट, ठीक है. सम आर नॉन पॉजिटिविस्टिक एज वेल. तो जो पॉजिटिविज्म है, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चर, मैक्रो थियरीज, इट सेज सोशियोलॉजी इज अ साइंस, ठीक है. ये बोलेगा सोशियोलॉजी एक साइंस है, साइंटिफिक डिसिप्लिन है, और इसमें हम साइंटिफिक मेथड का यूज कर सकते हैं. हमने पढ़ा मैक्रो थियरीज ऑफ फंक्शनलिज्म, टैलकोट पार्सन्स, मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स, डुरखाइम, राइट, अगस्त कॉम्ट, ऑल दीज आर मैक्रो थियरीज. दे टॉक अबाउट सोशल स्ट्रक्चर. और ये बोलता है सोशियोलॉजी इज ए साइंस. तो सोशियोलॉजी इज ए साइंस, सो हम क्या है इसमें साइंटिफिक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, राइट. माइक्रो थियरी से टॉक अबाउट एक्शन, ठीक है, और एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, सो इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल, राइट. तो इट सेज सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस, सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस, देयरफॉर साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, राइट. अब वेबर और गिडन्स क्या बोलते हैं, सी स्ट्रक्चर और एक्शन को आप मिला दोगे, सो इट बिकम्स स्ट्रक्चरेशन, राइट. तो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे. वेबर भी यही बोलेंगे. वेबर ऑल्सो टॉक्स अबाउट एक्शन, सोशल एक्शन की बात करते हैं वेबर, ठीक है. हमने जब पढ़ा था व्हाट इज सोशियोलॉजी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, उसमें देखा था अकॉर्डिंग टू वेबर सोशियोलॉजी इज द इंटरप्रेटिव स्टडी ऑफ सोशल एक्शन. और इस सोशल एक्शन को हम देखेंगे कॉजल एक्सप्लेनेशन एंड कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ द अफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशल एक्शन. तो जहां कॉजल एक्सप्लेनेशन की बात आएगी उसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, पॉजिटिविज्म के बारे में. तो दीज थियरीज, वेबर एंड गिडन्स, दे बोरो एलिमेंट्स from
बोथ पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म। ठीक है, ये बोलते हैं कि दोनों के जो मेथडोलॉजीज हैं, दोनों की मेथडोलॉजीज में जो हमें बेस्ट जो मेथड मिलेंगे जिसको हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं सोशल रिसर्चर में, तो हम दोनों ही मेथडोलॉजी से डिफरेंट एलिमेंट्स बोरो कर सकते हैं और दोनों ही मेथडोलॉजी को हम इन सिंक, ठीक है, उनको क्या हम सिंक्रोनाइज करके वेरियस एलिमेंट्स को दोनों से लेके वी विल कम अप विद अ certain different kind of methodologies. So these will form these two sociologists will try to bridge the gap between macro and micro sociology, between positivism and non positivism. ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैक्रो सोशियोलॉजी क्या है, राइट, और हम साथ साथ ये भी पढ़ेंगे न्यू कैंटियंस और वेबर क्या बोलते हैं। मैक्रो sociology, it talks about, ये बात करती है सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ये किस पे एम्फेसिस डालती है? It emphasizes on the social structure. It emphasizes on the social which is different from the individual. Social over the individual. सिंस इट डील्स विद सोशल, तो इसका लेवल ऑफ एनालिसिस क्या होगा? इसका लेवल ऑफ एनालिसिस मैक्रो होगा या माइक्रो होगा? इट्स लेवल ऑफ एनालिसिस विल बी मैक्रो एनालिसिस। एक तो ये रीजन है कि इनको मैक्रो सोशियोलॉजी या मैक्रो थियरीज बोला जाता है, राइट। ये सोशल के बारे में डील करते हैं, सोशल के बारे में पढ़ते हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। सोशल स्ट्रक्चर क्या था, हमने डील किया था इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम और सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या डिफरेंस है? सी डिफरेंसेस भी हैं और ओवरलैप भी है, राइट। तो हमने देखा था कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और ओवरलैप है। तो ये मैक्रो एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। ये सोशल और सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और ये इंडिविजुअल को नहीं, इंडिविजुअल को निगलेक्ट करते हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, राइट। It always talks about social, it always talks about collectivism, collectivity, right? So its level of analysis is not limited to a particular individual, rather it is generalizing in nature. So this is why these are called as macro theories और macro analysis. एक तो ये रीजन है, इंडिविजुअल और उसके एक्शंस के बारे में they don't talk about it. तो ये बोलते हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे, राइट, तो सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट होंगे, ठीक है, पावर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फैमिली, ठीक है, these are also social institutions but they are a part of a social structure, right? They are constituted by the social structure. तो इसका मतलब क्या है? इन दो स्टेटमेंट्स को रेफर टू द फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। कास्ट, रिलीजन, जेंडर, these are all constituted by social structures. सोशल स्ट्रक्चर, जेंडर, रेस और इथनिसिटी, क्लास, और भी आप इसमें एज्यूम कर सकते हो, किनशिप, राइट, मल्टीपल टर्म्स। नाउ ये क्या है? इनके बारे में स्टडी करती है, ठीक है। ऑल दीज डील with collectivity. All the women put together or men put together are classified in a form of gender, right? So it deals with macro,
an aggregate of individuals, it deal with the social, right? तो ये बोलते हैं ये जो सोशल स्ट्रक्चर है ये वेरियस इंडिविजुअल्स हैं, लेट अस से दे आर ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। तो ये थियरीज मैक्रो थियरीज बोलती हैं कि ये जो है इनको शेप करती हैं। ठीक है, इंडिविजुअल और उसके बिहेवियर को शेप करती है। हमने पढ़ा पॉजिटिविज्म के बारे में यही था। ठीक है, तो इट सेज दैट द सोशल स्ट्रक्चर विच इंक्लूड कस्टम्स, नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी, वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस, ऑल दीज डिटरमाइन, ठीक है, ऑल दीज डिटरमाइन, कंट्रोल, shape and influence human behavior। ठीक है, तो human behavior is in conformity with the demands with cultural norms, values, rules and regulations, it is shaped by social structure। तो हम इनको देख सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल होगा उसका जो बिहेवियर होगा और उसके जो एक्शंस होंगे, ठीक है, दे विल बी शेप्ड इन टर्म्स ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। तो इनको आप लिख सकते हैं जैसे एक पपिट होती है, तो इनको आप पपिट रख सकते हो, और दीज आर वेरियस स्ट्रिंग्स। सो दीज स्ट्रिंग्स कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ मैन। सिंस दीज कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अ मैन, तो जस्ट लाइक अ पपिट द मैन विल एग्जैक्टली बिहेव एज पर द cultural values, norms, rules and regulations of the society, the various do's and don'ts, the social structure, right? तो इसमें क्या बोला जाता है कि सिंस ये सब इंडिविजुअल्स कंफर्म करेंगे इनको, राइट, सो ऑल दीज इंडिविजुअल्स विल बी बिहेविंग इन एन आइडेंटिकल मैनर। तो सब आइडेंटिकल मैनर में पढ़ेंगे, डील करेंगे और बिहेव करेंगे, और ह्यूमन बिहेवियर क्या है, हमेशा प्रिडिक्टेबल है, राइट, स्ट्रक्चर्ड है, पैटर्न है। यही हमने पढ़ा था पॉजिटिविज्म में। पैटर्न है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, यहां पे है ये यूनिफॉर्मिटी है बिहेवियर में। तो यहां पे आप यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइजेशन और जनरलाइजेशन कर सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअल्स आर बिहेविंग इन एन आइडेंटिकल मैनर, राइट। सो दैट इज वाई दे निग्लेक्ट इंडिविजुअल, दैट इज वाई दे प्लेस एम्फेसिस और इंपॉर्टेंस ऑन द सोशल over the individual, right? Because all individuals are either way behaving in identical manners, they have a similar kind of behavior, so we have to understand the similarity। और इस similarity और identical behavior को हम क्या जब standardize करेंगे, generalize करेंगे, general theory बनाएंगे, ठीक है, तो behavior यहाँ से क्या है, universal और ग्रैंड थियरीज आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सो सिंस दीज थियरीज आर ग्रैंड, यूनिवर्सल, दे एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन इट्स टोटलिटी, राइट। तो ये उसी को अप्रोच कर रहे हैं ना साइंटिफिक मेथड को, क्योंकि मैटर का भी बिहेवियर आइडेंटिकल है। अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस विल बी रिपेलिंग दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो आइडेंटिकली बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये मैन को एक कठपुतली और एक पपेट की तरह समझता है। और ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आर दीज आर वेरियस इनविजिबल स्ट्रिंग्स विच आर कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। सिंस बिहेवियर इज डिटरमाइंड, एब्सोल्युटली डिटरमाइंड, देयरफॉर यूनिवर्सल थियरीज, जनरलाइजेशंस आर पॉसिबल, एंड दैट इज वाई पॉजिटिविज्म इज एडवोकेटेड बाय मैक्रो सोशोलॉजिस्ट। तो मैक्रो सोशोलॉजिस्ट कौन कौन से हमने पढ़े थे? पॉजिटिविस्ट भी, इसलिए मैक्रो सोशोलॉजिस्ट को पॉजिटिविस्ट कहीं कुछ हद तक बोला जाता है। तो इसलिए जो फंक्शनलिस्ट है उनको भी पॉजिटिविस्ट बोला जाता है, बिकॉज दे आर मैक्रो सोशोलॉजिस्ट। मार्क्सिस्ट, राइट, कुछ मार्क्सिस्ट को भी बोला जाता है, कार्ल मार्क्स को, ठीक है। तो डुरखाइम क्या बोलते हैं? डुरखाइम यही तो बोलते हैं। जब हम सोशल फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो ऑल दीज आर सोशल फैक्ट, ये सारे सोशल फैक्ट हैं। तो डुरखाइम बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर
ठीक है, इज शेप्ड बाय सोशल फैक्ट्स, शेप्ड कंस्ट्रेंड बाय, हमने देखा सोशल फैक्ट्स एक्ट एज ए कंस्ट्रेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। मार्क्स ने क्या बोला, ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या है हम देखेंगे थिंकर पार्ट में, राइट। इट इज शेप्ड बाय क्लास, ठीक है, इट इज शेप्ड बाय क्लास। और सिमिलरली हमने देखा आप पार्सन्स में भी ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमंस क्या है, सोशलाइजेशन और सोशल कंट्रोल के हमने टूल्स पढ़े थे पॉजिटिविज्म में। तो ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोशल, द डिमांड्स ऑफ सोशल सिस्टम, ठीक है। नाउ इनके कॉन्ट्रास्ट में आएंगे माइक्रो सोशोलॉजी। तो इसको मैक्रो क्यों बोला जाता है, एक तो लेवल ऑफ एनालिसिस मैक्रो एनालिसिस है, प्लस दे आर प्रोपोगेटिंग बिग थियरीज, यूनिवर्सल ग्रैंड थियरीज। तो अब हम पढ़ेंगे माइक्रो सोशोलॉजी के बारे में। माइक्रो सोशोलॉजी हमने देखा कि 3 सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमिनोलॉजी और आपका हमने देखा इथनोमेथोडोलॉजी। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं ऑल दीज थियरीज आर पार्ट ऑफ इंटरप्रेटिव थ्योरीज। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी एक लिंक ट्रेस किया कि इमैनुअल कांट जो होंगे फिलोसोफर हैं, ये इन्फ्लुएंस करेंगे नियो कांटियंस को। हमने पढ़ा डिल्थे, रिकर्ट और विंडलबैंड, दीज थ्री आर नियो कांटियंस, और नियो कांटियंस इन टर्न इन्फ्लुएंस करेंगे वेबर को। तो हम वेबर को समझने के लिए हमें कांट और नियो कांटियंस पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमने देखा कि फिलॉसफी से उठाया गया है, ही इज अ फिलोसोफर, और ये जो थियरीज हैं, ये जो थियरीज है नियो कांटियंस और वेबर की, दे आर इंस्पायर्ड बाय द फिलोसफिकल थियरी पुट फॉरवर्ड बाय इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट क्या बोलते हैं, इमैनुअल कांट क्या बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज दिस विल शेप और डिस्टिंग्विशेस बिटवीन नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज। तो इनका कोर आर्ग्यूमेंट क्या है इमैनुअल कांट का, इमैनुअल कांट ये बोलते हैं, ही डिस्टिंग्विशेस, इमैनुअल कांट और हेगल के बीच में भी थोड़ा डिफरेंस हम देखेंगे इन लेक्चर्स के बीच में, बिकॉज वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना, और वो कैसे शेप करते हैं सोशोलॉजिस्ट को। तो इमैनुअल कांट ही एस्टेब्लिश अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ डिमार्केशन बिटवीन ठीक है, और ही डिस्टिंग्विशेस बिटवीन, ठीक है, ही सेज रियलिटी इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। वन इज एक्सटर्नल रियलिटी, सेकेंड इज इंटरनल रियलिटी। एक्सटर्नल रियलिटी इज विच इज ये हमेशा क्या है, इंडिविजुअल फिलोसोफर्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट मैन। तो इंडिविजुअल ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से एक्सटर्नल रियलिटी क्या है, सो द रियलिटी विच इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, यही आपका बेस बनाएगा नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस के बीच में, ठीक है। गैप क्या होगा, इंटरनल रियलिटी विच इज इंटरनल टू द इंडिविजुअल, ठीक है। तो एक्सटर्नल रियलिटी को इन्होंने बोला, टर्म दिया एक्सटर्नल रियलिटी को इन्होंने बोला इट इज अ कॉल्ड एज फिनोमिनल वर्ल्ड, ठीक है।
और यहां पे इन्होंने इंटरनल रियलिटी को बोला नॉमिनल वर्ल्ड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सी, दिस वर्ल्ड और दिस रियलिटी इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, दिस वर्ल्ड और दिस रियलिटी इज इंटरनल टू द इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहां से इंडिविजुअल के जो एक्सटर्नल में होगा दैट इज फिनोमिनल वर्ल्ड, और जो इंडिविजुअल के अंदर जो वर्ल्ड होगा, रियलिटी होगी, विच लाइज इनसाइड द इंडिविजुअल, राइट, दैट इज नॉमिनल वर्ल्ड। तो फिनोमिनल वर्ल्ड क्या है? ठीक है, विच इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल। तो ये बोलते हैं दिस इज नेचुरल, फिजिकल और मटीरियल वर्ल्ड। ये क्या है? दिस इज द वर्ल्ड ऑफ मैटर, right? This is the world of matter. This is the world which could be, this is the world which is visible to the individual, which is manifest, जिसको टच कर सकते हैं या सी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैन है इस वर्ल्ड के थ्रू कैसे आता है? ये जो वर्ल्ड है, एक्सटर्नल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, इसके साथ जो इंटरफेस होता है मैन का, वो कैसे आता है? मैन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फिनोमिनल वर्ल्ड थ्रू हिज सेंसेस। ठीक है, तो जो सारी सराउंडिंग्स है नेचुरल वर्ल्ड की, मटेरियल वर्ल्ड की, फिजिकल वर्ल्ड की, दैट इज मैन परसीव दिस वर्ल्ड थ्रू हिज सेंसेस, सेंसेस ऑफ eyes, ear, through eye you can see ear, smell, nose, touch, taste। तो इसके थ्रू मैन कांटेक्ट में आता मटेरियल वर्ल्ड के। ठीक है, राइट। तो जितना भी आप वर्ल्ड देख रहे हो, आई एम एन इंडिविजुअल, एवरीथिंग दैट इज एक्सटर्नल टू मी इज अ पार्ट ऑफ अ फिनोमिनल वर्ल्ड। दिस माइक इज अ पार्ट ऑफ फिनोमिनल वर्ल्ड। ठीक है, दिस जैकेट इज अ पार्ट ऑफ फिनोमिनल वर्ल्ड, दिस चॉक इज अ पार्ट ऑफ फिनोमिनल वर्ल्ड। सो ऑल दिस विजिबल मैनिफेस्ट कंप्लीटली। नाउ अगर मेरे सामने इफ देयर इज कोई दूसरा इंडिविजुअल खड़ा होता, तो वो इंडिविजुअल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिनोमिनल वर्ल्ड, बिकॉज जो इंडिविजुअल की जो बॉडी है, इंडिविजुअल की जो बॉडी है दैट वी कैन सी, टच, तो दैट बॉडी इज मटीरियल और फिजिकल इन नेचर। तो इवन आई एम अ पार्ट ऑफ फिनोमिनल वर्ल्ड टू अनदर पर्सन, राइट। ठीक है, मैं अपने इसको टच कर सकता हूं, हैंड्स को, राइट। ठीक है, सो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ योर फिनोमिनल वर्ल्ड। तो मैं अपनी सेंसेस के थ्रू ही फिनोमिनल वर्ल्ड को देख सकता हूं, राइट। तो ये बोलते हैं जो एक्सटर्नल रियलिटी और जो फिनोमिनल वर्ल्ड की जो रियलिटी है उसको तो हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू नेचुरल साइंसेस, इजंट इट। नेचुरल साइंसेस के थ्रू पढ़ सकते हैं हम, राइट। दूसरे जो इंडिविजुअल है उसका जो बॉडी है, बॉडी पार्ट्स है, दैट इज एन एक्सटर्नल रियलिटी। तो उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। हमने देखा कि डाइसेक्ट किया जा सकता है, बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, तो हम वी कैन स्टडी थ्रू बायोलॉजी। हम क्या नेचर को, सराउंडिंग्स को थ्रू फिजिक्स, राइट, मैटर को थ्रू फिजिक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के थ्रू वेरियस जो रिएक्शंस हो रही हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, so this material world could be studied through natural sciences. Now ठीक है, internal reality which is internal to the individual, which lies within me. So my internal reality will be my internal spirit, my consciousness, ठीक है, my ideas, my mindset. You can't see my ideas, my mindset, my consciousness or my spirit. That is my internal reality. So this reality is hidden, right? So nominal word deals with the internal reality, which is the reality
इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज, ठीक है, विच स्टडीज कॉन्शियसनेस. These ideas are generated by consciousness, spirit or mind. See, mind is internal reality, whereas brain is external reality. Mind is immaterial, right? Whereas brain is material. You could actually study various components of brain, cerebrum, cerebellum, right? So, this is an internal reality. इसको लूजली एक टर्म दिया जाता है, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, गाइस्ट या जीस्ट. दिस इज ए जर्मन वर्ड, GEIST. तो हेगल भी यूज करेंगे इसी वर्ड को कांट यूज कर रहे हैं. आप पढ़े भी, ठीक है, मार्क्स जब डील करेंगे. सो दिस इज इंटरनल रियलिटी. सो दिस रियलिटी, ठीक है, तो नियो कांटियंस बोलते हैं दिस इज द इंटरनल रियलिटी इज स्टडीज मैन, ठीक है, और दिस रियलिटी इट स्टडीज मैटर. सो दिस रियलिटी इज हिडन, इनविजिबल, ठीक है. तो यहां से नियो कांटियंस क्या बोलते हैं कि सिंस दिस रियलिटी में मैटर स्टडी करते हैं, इसमें हम मैन और उसका हिडन और इनविजिबल कॉन्शियसनेस, स्पिरिट और माइंड को स्टडी करते हैं, ठीक है. तो यहां से नियो कांटियंस क्या बोलते हैं, यहां पे नियो कांटियंस आएंगे. हर एक ने अपनी बड़ी बड़ी थियरीज दी हैं, उनको नहीं हम एक साथ पढ़ सकते, लेकिन जनरल एक आइडिया देख सकते हैं. डिल्थे, रिकट और विडलबैंड क्या बोलते हैं कि जो नेचुरल, जो वर्ल्ड ऑफ मैटर है उसको स्टडी करने के लिए कौन आएगा, नेचुरल साइंसेज, ठीक है. और नेचुरल साइंसेज में क्या हम कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस, जनरलाइजेशंस, और यूनिवर्सलाइजेशन इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड ऑफ मटीरियल और नेचुरल साइंसेज, बिकॉज जितना मैटर है वो आइडेंटिकल मैनर में ही रिएक्ट करेगा, ठीक है. तो वहां पे सिंस एवरी मैटर, ठीक है, एवरी मैटर इज समहाउ एन इनएमिनेट इन नेचर, राइट. सो इट इज रिएक्टिंग इन एन आइडेंटिकल मैनर. तो सारा, जब ये सारे के सारे मैटर आइडेंटिकल मैनर में रिएक्ट करेंगे तो हम एक उनकी एक जनरलाइज थ्योरी ऑफ बिहेवियर बना सकते हैं. सो ये बोलते हैं कि नेचुरल साइंसेज, नियो कांटियंस से नेचुरल साइंसेज में एब्स्ट्रैक्शंस, जनरलाइजेशंस और यूनिवर्सल थियरीज पॉसिबल हैं. वेयरएज नियो कांटियंस क्या बोलते हैं, इसी आइडिया को लेकर कांट के कि, ठीक है, कि हर एक इंडिविजुअल की इंटरनल रियलिटी इज डिफरेंट. माई इंटरनल रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर रियलिटी. तो since these are various individuals, their internal reality, each one's internal reality or consciousness or spirit or mind or geist is different from each other. तो हम इसको कैसे स्टडी करेंगे, तो नियो कांटियंस बोलते हैं इनके इंटरनल स्पिरिट और इनके एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, इनको एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने के लिए हमें क्या है, पर्टिकुलराइजिंग करना पड़ेगा. पर्टिकुलराइजिंग, ठीक है. यहां पे हम कर रहे हैं जनरलाइजिंग, राइट. वी आर कंस्ट्रक्टिंग बिग थ्योरीज. लेकिन ये बोलते हैं कि सिंस दिस इज एवरी रियलिटी इज डिफरेंट, एवरी इंटरनल रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम, मेरा जो इंटरनल रियलिटी विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर इंटरनल रियलिटी, राइट. तो यहां पे क्या पर्टिकुलराइजिंग करेगा, हर एक को स्टडी करना पड़ेगा. किसको स्टडी करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, दैट डिपेंड्स ऑन द सोशल साइंटिस्ट. और यहीं पे काम बात आती है वैल्यू रेलिवेंस की, ठीक है. वैल्यू रेलिवेंस क्या होगा हम वेबर के टाइम पे देखेंगे, ठीक है. किसको स्टडी करें, किसको ना करें, राइट. तो इसको कैसे करेंगे, सी ये जो इन्होंने एब्स्ट्रैक्शंस और जनरलाइजेशन किया है, ये नेचुरल साइंसेज में पॉसिबल है. इसको बोलते हैं नोमोथेटिक. ये एग्जाम में पूछा गया था.
नोमोथेटिक मेथड और नोमोथेटिक साइंसेस बोला जाता है इसको, ठीक है। तो अगर ये पूछा गया था तो आपको नियो कांटियंस और वेबर के बारे में बात करनी थी और हैगल को इंट्रोड्यूस आपको कांट को इंट्रोड्यूस करवाना था। और इन जनरल दिस इज नथिंग बट नोमोथेटिक मेथड इज साइंटिफिक मेथड, दिस इज द एंटायर डिबेट, राइट। फाउंडेशन इज लेड डाउन बाय दीज पीपल। सो हर एक, अब नाउ हाउ डू वी स्टडी द इंटरनल रियलिटी ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। तो हमें क्या बोलते हैं, दिस इज इन ऑर्डर टू स्टडी द इंटरनल रियलिटी और कॉन्शियसनेस or ideas of this person or the mind of this person, you have to place yourself in the position or place or shoes of this person, ठीक है। जब इसके फुटस्टेप में और इसके पर्सपेक्टिव से आप देखने की कोशिश करोगे चीजों को, दैट इज हाउ यू कुड somehow construct what is internal reality, the reality of ideas, it is the realm of ideas, ठीक है। so यहां पे क्या होगा, you place yourself in the position of that person और यहां से आप इंटरप्रिटेशन करोगे, right? You will be interpreting what his experiences are, what his ideas are, how he is experiencing the world, how his consciousness is structured or shaped, right? So you will be placing yourself in the position of this person, and that is how you will be interpreting, anticipating the internal reality of that person. So this is particularizing in nature, it studies particular individual, right? तो ये जो बोलते हैं नियो कांटियंस बोलते हैं कि जो सोशल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज स्टडीज द इंटरनल रियलिटी ऑफ मैन, सोशल स्टडीज मैन, नेचुरल साइंसेज स्टडीज नेचर, ठीक है। तो ये जो सोशल साइंसेज जो होंगी, it deals with ideas, the study of ideas and how these ideas are constructed by individuals, how these ideas are constructed by individuals who are purposive, ठीक है, they have a purpose, they are subjective, each one will be different from each other, they are free, that is they are not restrained by anything else, they are completely free, autonomous, they have a free will of their own to manifest their consciousness and subsequently project their action, right? तो ये बोलते हैं जितनी सोशल साइंसेज है इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल रियलिटी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइडियाज ऑफ मैन, ठीक है। तो ये जो सोशल साइंसेज है लाइक फिलोसफी यही है, इट इज अ फिलोसफी ऑफ आइडियाज, मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, राइट। सिमिलरली इट सेज सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सिमिलरली इस तरीके से है। सोशियोलॉजी इट सेज दैट द कल्चर इज इमटेरियल इन नेचर, कल्चर एंड सोसाइटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइडियाज ऑफ मैन, ठीक है। हाउ मैन शेप हिज सराउंडिंग्स, he interacts with each other, how he manifests actions in terms of his consciousness, in terms of his ideas. So he says culture as well as history, culture, society, history is a product of ideas of man, ठीक है। तो ये बोलते हैं history is also particularizing, अब नियो कांटियंस बोलते हैं हिस्ट्री इज पर्टिकुलराइजिंग इन नेचर, बिकॉज हम हिस्ट्री में पर्टिकुलर इवेंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट को पढ़ोगे आप, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को पढ़ोगे, अशोका, अकबर, इनको आप पढ़ोगे, ठीक है, डिटेल में, राइट। तो दिस इज नोमोथेटिक नेचुरल साइंसेज, और जो सोशल साइंसेज है ड्रिवन बाय आइडियाज ऑफ मैन, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, दिस इज कॉल्ड एज इडियोग्राफिक साइंसेज और इडियोग्राफिक मेथड,
ठीक है। इडियोग्राफिक मतलब इट कम्स फ्रॉम आइडियाज, इडियोग्राफिक मेथड और साइंसेज। राइट। तो आपके जो नोमोथेटिक मेथड है दैट इज ये कि क्या करेगा, जनरलाइज करेगा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशंस देगा, एब्स्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है, और यूनिवर्सलाइज करेगा। वेयर एज नोमोथेटिक मेथड क्या करेगा, नोमोथेटिक मेथड क्या करेगा, नोमोथेटिक मेथड विल बी पर्टिकुलर इन नेचर, पर्टिकुलर चीजों को पढ़ेगा, लेकिन उनको क्या है, इट डील्स विद स्पेसिफिक इवेंट इंडिविजुअल राइट, ठीक है, बट ये क्या है, इस चीज को कॉम्प्रीहेंसिवली इन डिटेल डील करेगा, और क्या है, वेरी कंक्रीट थियरीज देगा, ठीक है। सो दिस इज पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, डिटेल्ड एंड कंक्रीट, दीज आर जनरलाइज्ड, एब्स्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सलाइज्ड, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नोमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक साइंसेज। यहां से एक टर्म यूज करके आती है, एक लाइन यू कुड राइट इट डाउन कि सिंस नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज स्टडीज डिफरेंट रियलिटीज, सिंस इसलिए उनका क्या है, सब्जेक्ट मैटर, द मैटर द सब्जेक्ट और द reality that they are going to study is different from each other. Natural sciences and social sciences are different from each other. They study different subject matter, they study different realities. So in order to study these different subject matter, they will be using different method, right? One will be using nomothetic method, one will be using idiographic method, one will be using quantitative method, one will be using qualitative method. So this the method of interpretation is what is, this is qualitative method, right? You are placing yourself in the position of other, you are trying to see the things from that person perspective, you are trying to interpret or derive what could be his possible internal reality or his internal ideas which are hidden, ठीक है। ये सब हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि अब हमें वेबर पढ़ना है, उसकी सोशल एक्शन के बारे में क्या बोलता है, ठीक है, उसके लिए हमें ये कंसेप्ट जानना जरूरी था। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट, वी हैव स्टडीड ऑन नियो कैंटियंस, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट वेबर, देन विल बी टॉकिंग अबाउट दोज थ्री इंटरेक्शनिस्ट थियरीज, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, राइट। सी नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेबेरियन पर्सपेक्टिव, वेबर क्या बोलते हैं, ठीक है। एज वी हैव सीन दैट Immanuel Kant influenced Neo-Kantians and Neo-Kantians in turn influenced Weber. तो उससे पहले हम एक कंसेप्ट और देख लेते हैं रिलेटेड टू कांट। सी कांट क्या है, जो उनका जो बेसिक डिस्टिंक्शन था फिनोमिनल वर्ल्ड और न्यूमिनल वर्ल्ड के बीच में जो डिमार्केशन और डिस्टिंक्शन था, इसका भी बेस आया था उनका, कहाँ से आया था, ही एस्टेब्लिश्ड माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। This is a philosophical concept. Mind is a part of internal reality, whereas your physical body, हमने just देखा, it is a part of external reality. So he establishes a distinction between mind and body, ठीक है। तो ये माइंड बॉडी डिस्टिंक्शन की वजह से डिस्टिंक्शन आई फिनोमिनल वर्ल्ड और न्यूमिनल वर्ल्ड के बीच में, फिर डिस्टिंक्शन आई नेचुरल साइंसेस, दिस ड्यूअलिज्म लेड टू डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस के बीच में भी ड्यूअलिज्म आया, ठीक है। और वेरियस काइंड ऑफ ड्यूअलिज्म यहां से डिराइव होंगे। एक ड्यूअलिज्म आप पढ़ोगे दैट इज वैल्यू, ठीक है, फैक्ट, नेचुरल साइंसेस यूज करते हैं और ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं बॉडी को, और सोशल साइंसेस यूज करते हैं वैल्यू। तो आप फैक्ट वैल्यू डुअलिज्म और फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी यहीं से आई है, ये कांट बोलते हैं। हेगल क्या है, इसके ऑपोजिट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ये भी बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी ऑफ हेगल, और फिनोमिनोलॉजी ऑफ हेगल से ही डिराइव हुआ है फिनोमिनोलॉजी ऑफ हसरल, और वहां से आपका
ये फिनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजी ऑफ स्टूड्स आया है, ठीक है। तो फिनोमिनोलॉजी ऑफ हेगल क्या बोलते हैं कि ही रिजेक्ट्स दिस डुअलिज्म, ठीक है। हेगल आपने पढ़ा होगा, द ओनली रियलिटी टू हेगल इज योर इंटरनल रियलिटी और माइंड, उसको उन्होंने बोला जीस्ट और गाइस्ट, ठीक है। तो दिस इज द ओनली रियलिटी। ये बोलते हैं द एक्सटर्नल रियलिटी इज अ प्रोजेक्शन ऑफ इंटरनल रियलिटी। अगर आपने कुछ सोशियोलॉजी का बेसिक कुछ पढ़ा है तो एक बड़ा ही फेमस कोट है हेगल का, व्हाट इज आइडियल, दैट इज आइडियल मतलब पर्टेनिंग टू आइडियाज, पर्टेनिंग टू इंटरनल रियलिटी, व्हाट इज आइडियल दैट इज रियल, राइट। ये इन्होंने कोट दिया है। तो योर एक्सटर्नल रियलिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर इंटरनल रियलिटी, ठीक है। एक्सटर्नल रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंटरनल रियलिटी। तो जो आपको मटेरियल वर्ल्ड है वो बोलते हैं दैट इज आवर कंस्ट्रक्शन। तो हम फिनोमिनोलॉजी में पढ़ेंगे इसका क्या मतलब है डिटेल्ड में, ठीक है। और यही मार्क्स भी इसको बोलते हैं डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो दिस इज डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। सो ये डुअलिज्म की जगह मोनिज्म में बिलीव करते हैं, ओनली माइंड में बिलीव करते हैं, ठीक है, राइट। तो हम ये कैसे देखेंगे कि मोनिज्म को कैसे जस्टिफाई करेंगे, हम उसमें पढ़ेंगे फिनोमिनोलॉजी में, राइट। अब हम पढ़ते हैं वेबर के बारे में। हमने देखा कि वेबर क्या है, मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं गैप बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म। ही बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ पॉजिटिविस्टिक एज वेल एज नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजीज, राइट। सो ही एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ अ ब्रिज और लिंक बिटवीन पॉजिटिविस्टिक एंड नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी, ठीक है। और ये ब्रिज क्लियरली आपको देखने को मिलता है जैसे वो सोशियोलॉजी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू वेबर, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, इज द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। तो यहां से क्या आ गया, यहां से इंटरप्रिटेशन और सोशल एक्शन कौन डील करता है, माइक्रो सोशियोलॉजी डील करती है, राइट। नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी डील करती है। तो दिस इज नॉन पॉजिटिविस्टिक्स प्लस माइक्रो सोशियोलॉजी। तो ये तो इन्होंने बोला कि ये तो सोशियोलॉजी का कुछ ना कुछ पार्ट रहेगा, ठीक है। फिर इन्होंने इसको ऐड कर दिया एंड और प्लस यहां पे पॉजिटिविज्म का देखने को मिलेगा जो इन्फ्लुएंस था वेबर के वर्क्स पे। एंड कॉजल एक्सप्लेनेशन कौन करता है, कॉज और इफेक्ट हमने कहां पढ़ा था, दैट इज पॉजिटिविज्म। कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स कोर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, effect of, that is consequences or effect of social action. This is the basic definition of sociology. तो यहां से क्या आ गया, पॉजिटिविज्म, कॉजल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहां से आया माइक्रो और यहां से आया थोड़ा सा मैक्रो, नॉन पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म, ठीक। तो यही देखने को कहां मिला था जब हम कॉज और इफेक्ट के बारे में पढ़े थे। तो वेबर क्या बोलते हैं, ही एस्टेब्लिशेस अ कॉजल लिंक बिटवीन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दैट प्रोटेस्टेंट एथिक्स, इथोस, वैल्यूज led to the development of capitalistic spirit और capitalistic values in the western world। कैसे हुआ वो हम वेबर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या स्टडी किया, इन्होंने कहीं ना कहीं सोशल एक्शन पढ़ा प्रोटेस्टेंट्स का, ठीक है, और वहां से उन्होंने उसको एग्रीगेट किया और यहां से उन्होंने लिंक किया कैपिटलिज्म के साथ, ठीक है। तो व्हाट इज सोशल एक्शन, ठीक है। सोशल एक्शन इट इन्वॉल्व्स ठीक है इंटरएक्शन कैसे बना हुआ है, इंटर प्लस एक्शन, इंटरएक्शन दैट इज एक्शन
इंटर कब होगा? जब एक से ज्यादा इंडिविजुअल होगा, राइट, तभी तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरएक्शन होगा। इन्वॉल्व्स इंटरएक्शन बिटवीन मोर देन वन इंडिविजुअल। दिस इज हाउ वेबर डिफाइंड सोशल एक्शन। ठीक है, तो ये जो इंटरएक्शन होगा, दिस इज कॉल्ड एज सोशल एक्शन। एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स होने चाहिए। ठीक है, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये भी देखा था क्या कोई एक इंडिविजुअल तब भी सोशल एक्शन हो सकता है। तो वेबेरियन थ्योरी के अलावा भी हम देख सकते हैं सोशल एक्शन इज स्ट्रक्चर शेप्ड बाय स्ट्रक्चर। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं एक सोशल कंटेक्स्ट में एक्शन टेक प्लेस करता है, तो वो अभी हमारी रेलिवेंट कंसर्न नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं, सी इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन मोर देन वन इंडिविजुअल। ठीक है, एक्शन सोशल कब होगा? जब एक्टर will manifest his action, actor will manifest his action taking into account the presence of others. A simple example is, right now I'm recording this lecture, you will be listening to this lecture later on, but this is a kind of an interaction, a kind of a virtual interaction between me and you. So my action, I'm taking this action taking into account, मैं ये lecture तभी deliver कर रहा हूँ because I know some students will be watching, so my action is taking into account the presence of the people who are actually watching this lecture, right? So this is a kind of an social action or interaction, right? So this action is oriented towards others. It is an oriented action. It is taking into account the presence of others, right? So this is social action. Now he says my action is driven by hidden meanings and motives. ठीक है, एक्शन इज मीनिंगफुल इन नेचर. There is some meaning I am attaching to this interaction that is taking place right now between me and you, right? So, but he says this my action is driven by some hidden meanings or motives. Why I am taking this particular course of action? There could be multiple meanings behind my action, right? It might be because teaching is my passion, I want to share my knowledge with other people, or is it because it gives me a platform, ठीक है, to launch my career in a particular kind of field. So there could be particular meanings or motives which are driving my action, right? ठीक है, तो he says कि जो action है, यहां पे हम फिर देखते हैं action which is visible, ठीक है, उसको तो हम पॉजिटिविस्टिक मेथड से देख सकते हैं. पॉजिटिविज्म का ऑब्जर्वेशन का अप्लाई करके वी कुड स्टडी दिस एक्शन, बट दिस विल ओनली डेवलप अ सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग. आप कंप्लीटली ये नहीं जान पाओगे व्हाई एम आई मैनिफेस्टिंग दिस एक्शन, because action is taking place in a particular context, it is driven by certain meanings and motives. So why I am taking this action, that is a hidden meanings and motives, he says. तो आप मेरे एक्शन को, मेरे मीनिंग्स को कैसे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? So he says it involves Verstehen, right? That is empathetic understanding. Verstehen is to understand, so it is empathetic understanding. So what does this statement mean? इसका मतलब ये है कि you will only understand the meaning behind my action because my meaning is driving my action. It is
giving aim to my action, it is shaping my action, why I'm taking this action. So you could only understand this action if you place, if through empathetic understanding, if you place yourself in my position, ठीक है, by placing oneself in the position, shoes or place of other, ठीक है. So then you will be able to think, see or perceive from my perspective. ठीक है, जब आप मेरी पोजीशन में अपने आप को रखोगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स एंड मोटिव्स. तो आप जब मेरे फुट स्टेप्स में मेरी जगह अपने आप को रखोगे, ठीक है, थिंक, सी, परसीव थिंग्स फ्रॉम माई, बिकॉज दीज मीनिंग्स आर माई ideas, these meanings are my internal reality, so you have to place yourself in my position, और वहां से you would be interpreting, you would be engaged in interpretation. तब आप इंटरप्रिटेशन करोगे विच इज अ क्वालिटेटिव मेथड, और वहां से आप पॉसिबल मीनिंग्स डिराइव करने की कोशिश करोगे कि वाई आई एम परफॉर्मिंग दिस एक्शन, राइट. सो ये जो इंटरप्रिटेशन है, इसके लिए टेक्निकल जर्मन वर्ड है हर्मेन्यूटिक्स. हर्मेन्यूटिक्स, राइट. नाउ यहां पे तो अपना वर्चुअल इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन सपोज इफ दिस वुड हैव बीन अ फिजिकल इंटरेक्शन, इफ यू वुड हैव बीन इन फिजिकल क्लासरूम, तो ये एक क्या काइंड ऑफ क्या होता, माई टीचिंग, मेरी टीचिंग क्या होती, इट विल बी अ काइंड ऑफ एन इंटरेक्शन सिचुएशन, ठीक है, जहां पे स्टूडेंट्स भी होते और टीचर भी होता. नाउ मैं क्या करूंगा कि आई विल बी प्लेसिंग माई सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ठीक है. मैं उनको नोटिस करूंगा, उनके जेस्चर्स को, ठीक है, वेदर दे आर अटेंटिव और नॉट, ठीक है, उनके जेस्चर्स को नोटिस करूंगा, उनकी जगह अपने आप को रखूंगा और उनके पर्सपेक्टिव से चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है. उनके जेस्चर्स क्या है, क्या वो नोट कर रहे हैं, वेदर दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और नॉट, राइट, या उनके फेसेस बड़े वियर्ड हैं, कंफ्यूजिंग है, वेदर दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और नॉट, राइट. और सिमिलरली जो स्टूडेंट्स है विल बी प्लेसिंग देमसेल्फ इन माय पोजीशन, ठीक है. मेरी पोजीशन से ये देखेंगे कि व्हाट दिस पर्सन डिमांड्स फ्रॉम अस, ठीक है, वो देखेंगे कि वी हैव टू बी अटेंटिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टीचर, राइट. वी हैव टू बी अटेंटिव, वी हैव टू लिसन केयरफुली टू हिज लेक्चर, सो यू विल बी प्लेसिंग योरसेल्फ इन माय पोजीशन इन अ फिजिकल इंटरेक्शन काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट. सो हम इंटरेक्शन सिचुएशन में एक दूसरे के प्लेस में we will be imagining ourselves, right, empathetic understanding. Only through this, जब हम इस प्लेस में रखेंगे, then we will be engaged in hermeneutics, interpretation की क्या मीनिंग्स और मोटिव्स हो सकते हैं, ठीक है. तो this is a basic idea of Verstehen. This is a German word. Hermeneutics is also a German word, right. और फिजिकल क्लासरूम सिचुएशन में स्टूडेंट्स ये भी करेंगे कि वी हैव टू बी ओबीडियंट, राइट, वी हैव टू मैनिफेस्ट राइट काइंड ऑफ बिहेवियर. ये तभी होगा जब वो मेरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे. इंटरप्रिटेशन और एम्पैथेटिक वर्स्टेहन कब होता है? सी आपका जीएस पेपर 4 में टॉपिक है पब्लिक, यू विल बी गोइंग इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और अदर सर्विसेज. तो यू हैव टू हैव अ काइंड ऑफ एम्पैथी, ठीक है. तो in order to deliver a good governance, you have to have empathy. This is why empathy is as a topic is mentioned in GS paper 4. तो एक administrator अगर from an urban setting, he is a kind of an intellectual. If he is placed in a tribal domain, a tribal district, so he has to understand the things from the perspective of the tribals. He have to put or imagine himself in the place of others and then have to derive meanings, interpret the meanings, right,
ओनली देन ही विल बी एबल टू सी द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ट्राइबल्स। तभी उनको क्या है, जब ये एम्पथी आएगी तभी ही विल गेट टू नो द रियल कंडीशन, द रियल फीलिंग्स, द रियल इमोशंस, द रियल एक्सपीरियंसेस ऑफ द ट्राइबल्स। तो वहीं से ही क्या है आपका एक गुड गवर्नेंस का मॉडल तभी आ सकता है। दिस हैपेंड इन ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एज वेल। जब गांधी आए he returned from South Africa, he was a barrister, he used to wear those expensive coats, right, hat and all that thing। तो जब इंडिया आए, जब उन्होंने फर्स्ट 1 ईयर ट्रैवल किया पूरे इंडिया में, देन ही गॉट टू नो द रियल पॉवर्टी। ठीक है, तो वो जो 1 साल था ही वॉज इंगेज्ड इन इंटरप्रिटेशन, हर्मेन्यूटिक्स। ठीक है, ही वॉज प्लेसिंग हिमसेल्फ इन देयर पोजिशन। तो उन्होंने जो पेन एक्सपीरियंस किया लोगों को पॉवर्टी में, दैट इज वाई ही रिजेक्टेड ऑल दोज क्लोथ्स, और उन्होंने क्या है खाकी को अडॉप्ट किया, राइट। ही यूज्ड टू बी कंप्लीटली बेयर, अपर चेस्टेड, राइट। तो ये जो है यही आपका यूज होगा सोशल साइंसेज में, तभी आप मैन उसको स्टडी कर पाओगे प्रॉपरली इन अ डिटेल्ड कंक्रीट मैनर, राइट। सो दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन हर्मेन्यूटिक्स। सो हर्मेन्यूटिक्स क्या है? सी, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हर्मेन्यूटिक सर्कल का। अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है ये, बट इट माइट बी आस्क्ड। अगर पूछा जाएगा तो हर्मेन्यूटिक्स पूछा जाएगा, लेकिन समहाउ अगर हर्मेन्यूटिक सर्कल भी पूछ लिया गया, स्टिल इट्स नॉट बीइंग आस्क्ड टिल नाउ इन द एग्जामिनेशन। क्यों नहीं पूछा गया? सी, हर्मेन्यूटिक्स क्या है? हर्मेन्यूटिक्स इज ए कंसेप्ट ओरिजिनली आपका लिटरेचर और लिंग्विस्टिक में डेवलप हुआ था। ठीक है, तो लिटरेचर में क्या है, यू हैव टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट, तो यू हैव टू यू विल बी इंगेजिंग इन इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टेक्स्ट। ठीक है, अब वेरी सिंपल एग्जांपल, ये इसके ओरिजिनल फाउंडेशंस कब हुई थी? जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में मार्टिन लूथर किंग ने क्या है, जो बाइबल को री इंटरप्रेट किया था। तो एक उसका जो बिल्कुल इंटरप्रिटेशन करने का मेथड कंप्लीटली डिफरेंट था फ्रॉम द चर्च। ही वांटेड टू क्रिटिसाइज द नेगेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ चर्च। उन्होंने, चर्च ने बाइबल को अपने वे में इंटरप्रेट किया और सुपरस्टिशन, डॉगमास, ब्लाइंड बिलीफ्स फैलाए, राइट। तो वो जो इंटरप्रिटेशन है बाइबल की, उसको काउंटर करने के लिए ही री इंटरप्रेटेड टेक्स्ट। तो दिस इज हाउ hermeneutics developed in literature, right? So you will be engaging in interpretation of text. Now see, interpretation of text करना जरूरी क्यों है? See, अब ये भी बात की जाती है कि कुरान को भी री इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, राइट। मॉडर्न टाइम्स में कुरान को क्या है, उसको री इंटरप्रिटेशन करें, मॉडर्न टाइम्स में अडॉप्ट किया जाए, राइट। बिकॉज इंटरप्रिटेशन एक फंडामेंटलिस्ट करते हैं और इंटरप्रिटेशन में वो जिहाद का कुछ अलग वर्ड मीनिंग निकाल लेता है। आपको बोलते हैं ना, कभी जो मॉडरेट्स हैं जो वो जिहाद को बोलते हैं कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ जिहाद, इंटरनल जिहाद एंड राइट दैट काइंड ऑफ थिंग। तो जिहाद को, जो कुरान का ही इंटरप्रिटेशन वेरियस मैनर्स में हो रहा है, राइट। सो कुरान का जो री इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा एज पर द मॉडर्न टाइम्स, वो अडेप्टेशन होना पड़ेगा, और दैट इज हाउ इस्लामिक टेररिज्म कुड बी टैकल्ड। नाउ सी, हर्मेन्यूटिक सर्कल क्या होता है? हर्मेन्यूटिक सर्कल, सी, आप कोई भी बुक पढ़ते हो, यू आर रीडिंग सम बुक, यूपीएससी के लिए आप इफ यू आर रीडिंग फॉर एग्जांपल रिडजर, यू आर रीडिंग रिडजर इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। तो होता क्या है, यू रीड वर्ड, ठीक है, देन यू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस बनने पे आपका एक अलग इंटरप्रिटेशन आता है, फिर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंक होता है तो उसका पैराग्राफ बनता है, ठीक है। तो वो जो सेंटेंस आपने पढ़ा है उसका एक बिल्कुल अलग मतलब निकल आता है। फिर पैराग्राफ पढ़ने के बाद दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हो तो उसको इंटरलिंक करके एक नया
इंटरप्रिटेशन आता है, एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, राइट। तो यूर अंडरस्टैंडिंग इज कॉन्स्टेंटली बेस्ड ऑन हर्मेन्यूटिक्स इंटरप्रिटेशन, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, राइट। फिर मल्टीपल पैराग्राफ्स पढ़ लेते हो तो एक थीम कवर हो जाती है, तो एक नया उसका मतलब निकल के आता है। थीम कवर होने के बाद क्या, एक चैप्टर कवर होता है, तो उसको लिंक करके देखते हो तो एक नया इंटरप्रिटेशन आता है, ठीक है। तो ये इट इज अ सर्कल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इट इज अ सर्कल ऑफ इंटरप्रिटेशन। यू आर कंटिन्यूसली गोइंग forward, then you are going back to read it again, continuously reinterpreting in order to understand the text, right? Now then chapter पढ़ लिया, फिर बुक्स पूरी बुक पढ़ते हो तो एक नया मतलब निकल के आता है, फिर उसको फिर से रिवाइज करते हो तो यू गेट अ मोर क्रिस्टल अंडरस्टैंडिंग। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ सर्कल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसलिए उसको बोलता है हर्मेन्यूटिक सर्कल, राइट। प्लस एक चीज आप देखोगे कि राइटर है, उसने कोई बुक लिखी तो उसने अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट किया वर्ड्स में, तो यहां पे कुछ ना कुछ लॉस होगा, वो एग्जैक्टली अपने थॉट्स को वर्ड में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। सेकंड, फिर मल्टीपल रीडर्स उसको पढ़ेंगे और ये कैसे इसके थॉट्स को एग्जैक्टली जो वर्ड्स हैं उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो यहां पे फिर लॉस होगा। और प्लस एवरीवन विल बी अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग दिस टेक्स्ट फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल, राइट। तो कोई भी बुक पढ़ेगा, रिडजर कोई भी पढ़ेगा, ठीक है, सोशियोलॉजी के लिए, तो एवरीवन विल हैव ए डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट मीनिंग ऑफ कंसेप्ट्स, कुछ ना कुछ ओवरलैप रहेगा लेकिन एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होगा अंडरस्टैंडिंग का। तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आप निकाल सकते हो एक टेक्स्ट की। सो दिस इज हर्मेन्यूटिक सर्कल व्हेन यू आर गोइंग बैक अगेन एंड अगेन टू री इंटरप्रेट थिंग्स। हर्मेन्यूटिक्स का यूज होता है आपका आर्ट में, स्पेशली एक पेंटिंग है, ठीक है, सम पेंटिंग वाज सोल्ड फॉर $10 मिलियन, ठीक है। तो जो बंदा उसको खरीद रहा है उसके लिए उसने इंटरप्रेट किया होगा, उसके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी, बिकॉज पेंटिंग में क्या है, आर्टिस्ट अपने थॉट्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करता है पेंटिंग में। आर्ट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एस्थेटिक्स, आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ इमोशंस, इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ डिराइविंग मीनिंग फ्रॉम दीज थिंग्स। सो वन पर्सन इज purchasing this art at very expensive prices, say suppose $10 million. Now a normal person like me who does not understand or who is not able to interpret the meaning of this painting, I'll be saying कि इसमें ऐसा क्या है इस पेंटिंग में, this painting is being bought for $10 million, right? ठीक है। तो वो लोग इसीलिए बिकॉज ही, क्योंकि उसमें मीनिंग छुपा होता है, उसका क्या है, इमोशंस, आर्टिस्टिक क्रिएशन और एक्सपीरियंसेस रिप्रेजेंट करता है। और इससे क्या है, एक बड़ा आर्टिस्टिक, जो लोग गैलरीज, म्यूजियम्स और पेंटिंग्स गैलरीज में जाते हैं वो क्यों, बिकॉज दे वांट टू हैव दैट सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, इमोशंस, फीलिंग्स, इंटरप्रिटेशन, राइट। मूवी आई थी तमाशा, नाउ व्हेन दिस मूवी केम it was criticized a lot, ठीक है, it was not a box office hit, but it was a form of art which was interpreted in different manner by different people. To me, I found it very good, right? तो मेरे को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज वो जो इमोशंस और एक्सपीरियंसेस थे, जो हिडन मीनिंग्स, वो जो डायरेक्टर उसमें रिप्रेजेंट करने की, जो राइटर उसमें डालने की कोशिश कर रहा हो, जैसे पोर्ट्रे की गई है, ठीक है, तो दैट गोइंग टू थिएटर इट इज अ काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, इमोशंस, फीलिंग्स, राइट। सो इट माइट बी री इंटरप्रेटेड बाई डिफरेंट मैनर, डिफरेंट पीपल, राइट। सो बेसिक वेबर का यही था कि वो जो लिंक बनाया इन्होंने और जो वर्स्टहन और हर्मेन्यूटिक्स का कंसेप्ट दिया, और हर्मेन्यूटिक सर्कल ये लिंग्विस्टिक में आया, लेकिन अभी ये यूज होता है आपका सोशियोलॉजिकल फील्ड में भी। रेगुलर हम क्या है, एक्शंस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो हम क्या है, एक दूसरे की पोजीशन में रखते हैं, और वहाँ से वी आर ट्राइंग टू इंगेज इन हर्मेन्यूटिक्स एंड वर्स्टहन, और वहाँ से हम इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं। हम कुछ गलत मीनिंग भी निकाल लेते हैं, हम फिर से अपने आप को वहाँ रखते हैं, फिर से वो
एक्शन और रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस रियलिटी इज इंटरनल, दिस इज हिडन, दिस इज एन इंटरनल रियलिटी, राइट? इट इज अ रियलिटी ऑफ आइडियाज, थॉट्स, कॉन्शियसनेस एंड माइंड और जिस्ट, राइट? सो दिस इज तो हमने ये पढ़ा नियो कैंटियंस और वेबर के बारे में, ठीक है? इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद इंटरेक्शनिस्ट थ्योरीज, उससे नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंक्लूड द नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजीज।